Women's Kabaddi League set to empower female athletes and establish a national sport. Upcoming season promises thrilling matches and opportunities for thousands of aspiring players. New Delhi, the 15th of October 2024, the Women's Kabaddi League (WKL) recently hosted a transformative press conference announcing exciting updates for the upcoming season. This event marks a significant step toward establishing women's kabaddi as a national sport and creating a thriving ecosystem for female athletes across India. The league's leadership, including Drive, Seema, CEO, and Harshit, Manav, COO, passionately articulated their vision to empower women in sports. Dr. Seema emphasized the league's commitment to fostering an environment where female athletes can flourish. Our goal is not just to create a league. We aim to build a comprehensive ecosystem that nurtures talent and provides opportunities for women at every level, she stated. The selection trials for WKL are set to be a major highlight of the upcoming season, as they will open doors for thousands of aspiring female players nationwide. The league aims to identify the most talented athletes who will then be selected for the auction process and logically segmented for the playing. The league will feature several teams, including the Bengaluru Hawks, Delhi Durgas, Gujarat Angels, Haryana Hustlers, Borders, Rajasthan Raiders, Telugu Warriors, and UP Ganga Strikers. Great Maratha. The WKL structure follows a round-robin and home-away format during selection trials, promoting an exciting and competitive atmosphere that is crucial for player development. This format allows teams to face each other multiple times, fostering not just competition but also camaraderie among players. The league seeks to instill a sense of unity and collaboration, essential elements in building a robust sporting community for women. In his remarks, COO Harshit, Manav, expressed his excitement for the future of women's kabaddi, stating, "We are committed to creating a strong platform for women athletes, ensuring they receive the recognition and respect they deserve. This is about building a legacy, a national game for women that encourages participation at all levels." वुमेन्स कबड्डी लीग, पहला सवाल ये है कि ये लीग कब से स्टार्ट होनी है, दूसरा फ्रेंचाइजीज अभी तक कितने आ गए हैं आपके पास? सर लीग का प्रोविजनल डेट्स हमारी फरवरी 2025 का प्लान कर रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी विल ट्राई टू स्टार्ट द लीग। और रही बात फ्रेंचाइजी की, तो आज हमारा प्रेस मीट हो गया है, आज हम लोग लॉन्च, हमारा अनाउंसमेंट हो गया है। अब हम धीरे धीरे ग्राउंड में जाएंगे और अपनी ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और प्राइस मनी क्या रहेगा? वो सर अभी लगभग विद इन अ वीक हम लोग सारा प्राइस डेक, पिच डेक सब शेयर कर देंगे। तो क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें ग्राउंड से सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों ने अभी मार्केट आउट नहीं किया, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए कि ग्राउंड में हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कितना एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि ये सारा विषय ही एक एंथुजियाज्म और एक जोश का है। सेकेंड सीजन आपका दुबई में हुआ था, फर्स्ट सीजन, माफ कीजिएगा, फर्स्ट सीजन आपका हुआ था। तो अब ये जो सीजन है ये कहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करेंगे? ये सेकंड सीजन है सर, प्रोविजनली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते थे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सेकंड सीजन हो इंडिया में हो वापस, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर एक बताएं कि गेम्स जो है, कबड्डी गेम्स हैं, अभी इतना पॉपुलर नहीं है, और पॉपुलर भी होना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ गेम है ये सारा, क्योंकि स्कूल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब जगह कबड्डी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल, इसको और ज़्यादा पॉपुलर होए, उस पर आपका क्या फोकस है? उसमें सर सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आप सभी का ही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब मीडिया, जब प्रेस इस चीज़ को अपने मुंह से कहता है, तो निसंदेह रूप से एक ट्रस्ट फैक्टर, एक विषय को बड़े मास तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहाँ हो जाती है। तो हम लोग तो आपसे अनुरोधी ज़्यादा हैं, बाकी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के साथ में हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट में हो। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर वुमेन्स कबड्डी लीग, और इस समय यहाँ पर पूरे जोश और शक्ति के साथ में हम लोग आज एक अनाउंसमेंट हमने किया है वुमेन्स कबड्डी लीग 2025 का, जो होपफुली फरवरी 2025 में के पहले हफ्ते में हम लोग दिल्ली में कराने की कोशिश करेंगे। मैडम आप हरियाणा से हैं, हरियाणा स्पोर्ट्स लेवल पर आज की डेट में देखा जाता सबसे फास्ट है, और आपने ये कैसे जाना कि कबड्डी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा रुझान कबड्डी की तरफ था, इसीलिए मैंने कबड्डी को प्रमोट किया। आपने पहले कभी कबड्डी? हाँ जी, मैंने खेला। खुदा स्पोर्ट्स में रही हैं हाँ कबड्डी जी, हाँ में? जी, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, कि स्टेट लेवल से इसको पैन इंडिया पे ले आने के लिए, या
स्कूल लेवल पे जाएंगे, किस तरीके से आप जाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से? जो स्टार्ट आपका क्या रहेगा? हमारा स्टार्टअप गांव के बच्चों से लेके शहर के बच्चों को सारी ट्रायलों में बुलाना है और उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम फिक्स कर रखा है। फिक्स करेगा। उम्र के हिसाब से भी आपने कुछ लिया अलग पार्ट? हाँ जी, उम्र 17 से लेके 30। अभी तो 7 टीमें ही आपकी गई थी, अभी कितनी नहीं, टीम 8 और टीमें बनाने? गई थी, 8 टीमें गई 8 थी, टीमें अब गई भी थी, 8 टीमें ही हैं। अभी भी 8 टीमें ही हाँ हैं। जी। तो और कुछ नया इसमें कुछ नया ला रहे हैं कुछ? हाँ जी, क्या लाया रहे नया? इनमें 2 टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। लीग में नाम हाँ चेंज जी। कर रहे हैं। लीग नाम आपने अपने आप से खुद रखेंगे या वो एक लेवल पर होता है जो लीग के अलग अलग रखते हैं नाम अपने हिसाब से? नहीं, हमारी जो कंपनी ये कमेटी वाले हैं वो कमेटी रखेंगे। वो नाम हाँ जी। सर आप बताएं। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, मैं फर्स्टली सीज़न जो हुआ था दुबई में उसका भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था और मुझे अभी हमारे जो सीईओ हैं और सीओओ हैं उन्होंने फिर मुझे मौका दिया है टूर्नामेंट डायरेक्टर का। तो मैं अपना पूरी भरसक प्रयास करूँगा कि सफल हो और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ सफल होगी। रही टेक्निकल की बात, मैं आपको बता दूँ, अगर ये 15-2-15 का मैच है, इसमें 30 सेकंड जैसे बॉयज़ में है, गर्ल्स में भी 30 सेकंड की ही रेड का टाइम है। सारे रूल्स रेगुलेशंस वही हैं। लड़कियों में जो होगा हमारा सीनियर में कोई एज फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमने ये है कि भाई कोई बच्चे जैसे हमारे सीईओ ने बताया अभी 17 या 18 साल से हम नीचे नहीं लेंगे और इसमें अपर एज नहीं होता, लेकिन अब की बार हमने जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि अपर एज भी रखेंगे कि इससे ज़्यादा, क्योंकि चोट लगने के, ये तो मैन टू मैन गेम है, इसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे को अपर एज का भी हमने प्रोविज़न रखा कि इससे ऊपर हम नहीं लेंगे। और रही रूल्स की बात, मैंने जैसे पहले आपने पूछा था तो मैंने बताया इंटरनेशनल वर्ड्स बन चुके हैं। अब जैसे पहले ये पाला मार दिया बोलते थे, अभी पाला मारना नहीं बोलते, इंटरनेशनल कहते हैं ऑल आउट। पहले जब कुछ भी बोलते थे हुतू तू बोलते थे, अभी सिर्फ कबड्डी ही बोलना होगा। और जैसे टेक्निकल टाइम आउट है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट कैसे देना है, कैसे देना, ये टोटल स्ट्रीमलाइन हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी सी मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ, आपने नहीं पूछा, मैं खुद चाहता हूँ बताना। मैं प्रो कबड्डी में 9 साल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैं 2 साल रेफरी था ग्राउंड में और 7 साल मैं थर्ड अंपायर रहा। हम टेस्ट मैच जो होते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, हम उससे ऊपर हमारी टीआरपी थी प्रो कबड्डी की। जो वनडे था, वनडे में हम 0.04% पीछे थे। क्रिकेट हमारे से सिर्फ T20 में हमारे से ऊपर था। और हम ये डिटर्मिनेशन लेके चले हैं, ये जो टीम हमारी सीईओ मैडम ने बनाई है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम मेन की प्रो कबड्डी से भी ऊपर लेकर जाएं इसको, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और वही जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये हम कुछ नहीं कर सकते। रेफरी कितने रखेंगे? रेफरी सर एक्चुअली एक मैच में 12 रेफरी होते हैं। 12 रेफरी होते हैं ग्राउंड पे ही 12 होते हैं सर। उसमें एक्चुअली क्या है, 2 अंपायर हो गए, रेफरी हो गया, उसमें असिस्टेंट स्कोरर हो गया, लाइन अंपायर हो गया, फिर 4 आदमी हमारे टेबल पे भी बैठते हैं। जो एक 30 सेकंड का मैंने आपको बताया स्लॉट, 30 सेकंड को काउंट करने के लिए मशीन रहती है। उसके बाद एक थर्ड रेड भी चलती है, आपने सुना होगा, डू और डाई भी उसको बोलते हैं। हम थर्ड रेड बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया डू और डाई। उसको काउंट करने के लिए अलग होता है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हम 2 ही रेड खाली हुई हैं, उसके बाद ही डू और डाई रेड बोल सकते हैं। और गलती से किसी ने सेकंड रेड को ही डू और डाई बोल दिया तो फिर इशू हो जाता है। तो उसके लिए एक रेफरी अलग से होता है। तो हम एक बार में 12 रेफरी लगाते और कुछ स्पेयर 4, 5, 7 जैसा भी होता है वो रखने पड़ते हैं। बाई चांस किसी को कुछ इशू आ गया, या फिर एक आदमी, जैसे हमने अभी फाइनल तो नहीं किया है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं 3 मैच पर डे कराएं, तो एक आदमी 3 घंटे नहीं खड़ा रह पाएगा, तो उसको चेंज कर देंगे। जो बैठा था टेबल पे उसको ग्राउंड में खड़ा कर देंगे, जो ग्राउंड में है उसको चेंज करेंगे। लेकिन 12 रेफरी तो एक बार में लगेंगे ही लगेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।